Hello friends, welcome back. This is Sachin Pandey and once again I welcome you all in my YouTube channel. Today I have brought a very important chapter which is extremely important for the point of view of the board examination, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This is the second chapter of your Flamingo book for the students of CBSE class 12th. And my dear students, in board examinations, definite and certain questions are asked from this chapter. They can be short questions or value-based questions, long answer questions. So, I want your full sincerity and attention. In between, I will be discussing important questions and answers, and believe me, no any other question will be asked out from the topic which I am going to cover. In this video, I will cover each and every topic, each and every, even small to bigger topics I will cover. So you need to be extra sincere, and certain important things are written on the blackboard. Later on you can have a snapshot and prepare your own notes. You can note it down. I will be discussing all these things. So before I start, if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon so that you can get the latest notifications. So let's start. Before I unravel line by line explanation, I want to discuss the significance of title, then central idea, theme or masses, and then we will come to line by line explanation. I hope you all can see the title, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anees Jung. My dear students, actually, Stories of Stolen Childhood is a book written by Anees Jung, an Indian writer, an Indian author. And in that book, actually she traveled in India, even across the world, and she found several, hundreds of child laborers, children who were the victims of exploitation, poverty. Her heart was moved. She was saddened by all these horrible sights. Children working at brick kilns, dhabas, restaurants, hotels. Anees Jung, she wrote several stories and she compiled all the stories in this book, Stories of Stolen Childhood. So, the chapter that you're going to study, it is an extract, it is an excerpt from the famous story book written by Anees Jung, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. And in this chapter, you will study, you will understand the stories of few children who are the victims of exploitation, victims of, stigma of caste, stigma of society, victims of child labor. You will be understanding. Let's understand the significance of title, Lost Spring. The title is full of metaphor. It is a metaphorical title, Lost Spring. Here, lose, lost, lost. This is a verb. Third form of lose. Spring is a metaphor that refers to the childhood. Here, spring word has been used for childhood. Lost spring. Try to understand this title. Nowadays we see that children, innocent children, children who are the future pillars of a nation, children are considered nation builders. What is happening to them? They are losing the spring of their life. अगर मैं आपसे कहूं, childhood is like the spring of a man's life, देखो simile हो गया. Childhood is like the spring of a man's life, तो simile हो जाएगा. अगर हमने like हटा दिया, direct imply कर दिया, तो अगर मैं बोल दूं, childhood is the spring of a man's life, comparison is still there, but यहाँ पर metaphor use हो गया. So यहाँ पर जो स्प्रिंग है, ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग इज अ मेटाफर दैट रेफर्स टू द चाइल्डहुड. एक्सप्लेनेशन आप कैसे देंगे? पहले आप स्प्रिंग को समझिए, स्प्रिंग को एक्सप्लेन करिए कि एज वी ऑल नो
spring is the most beautiful season. Spring is the season of joy, renewal, freshness, growth. Similarly, childhood is the spring of a man's life because it's a time for growth. There is tremendous scope for growth. At this stage, children can learn so many things. Children can gain so many things. But unfortunately, what is happening? Children who are the future pillars of a nation, they are losing the best period of their life. उनके फ्यूचर को स्पॉइल किया जा रहा है. बच्चों से उनका बचपन, अगर मैं कहूं चिल्ड्रन आर लूजिंग द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, ये थोड़ा सही नहीं होगा. वो बचपन खो नहीं रहे हैं, उनसे उनका बचपन छीना जा रहा है. देयर चाइल्डहुड इज एक्चुअली स्नैच्ड फ्रॉम देम. अब ये क्वेश्चन राइज होता है, आखिर किसने बच्चों से उनका बचपन आखिर छीना? किसने? क्राफ्टी, कनिंग, विशियस ग्रुप ऑफ पीपल, सेल्फिश पीपल. हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो बड़े ही सेल्फिश हैं, क्रूएल हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं, जिनको सिर्फ खुद से मतलब है. उन्होंने इन बच्चों के फ्यूचर को स्पॉइल कर दिया है अपनी कह सकते हो व्हिम्स को पूरा करने के लिए, अपनी कह सकते हो डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए. दीज क्राफ्टी, कनिंग एंड विशियस ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द चिल्ड्रन. दे हैव स्नैच्ड देयर चाइल्डहुड फ्रॉम दीज इनोसेंट चिल्ड्रन. बेटा इमेजिन करिए उस देश का फ्यूचर क्या होगा. बहुत सारे पोएट्स ने अपनी वर्क्स में इन चीजों को बहुत ही विविड मैनर में हाईलाइट किया है. अगर आप देखिए तो दिनकर जी ने भी लिखा, कितनी बड़ी बात वो लिख करके चले गए. स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की छाती से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं. बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं, उनकी जगह देखिए स्कूलों में नहीं है. उनकी जगह कह सकते हो अच्छे जगहों पर नहीं है, जहां पर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें, एनहांस कर सकें, अपनी स्किल्स को होन अप कर सकें. उनकी जगह फुटपाथ पर है. और जहां पर स्वानों को मिलता दूध भात, कुत्ते जो होते हैं जिनकी जगह गलियों में है, वो महलों में रह रहे हैं, पैलेसेस में रह रहे हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं. बट दीज चिल्ड्रन हु आर द नेशन बिल्डर्स, their future is spoiled. They are exploited. They are deprived of even basic amenities. आप देखिए, अब यहां बताइएगा कि चाइल्डहुड, यहां पर जो स्प्रिंग है, चाइल्डहुड इज कंसीडर्ड द स्प्रिंग ऑफ अ मैन्स लाइफ, बट नाउअडेज द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, देयर स्प्रिंग इज स्नैच्ड फ्रॉम देम. एक ऐसी लाइफ जहां पर दे आर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फ्री. At this stage, they can learn so many things. There is tremendous scope for growth, but they are exploited. कई बार क्वेश्चन चाइल्ड लेबर पर भी आ सकता है. क्या है चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर इज अ malpractice. What is child labor? Child labor is a malpractice in which children below 14 years of age, they are forced to work at different places like tea stalls, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ब्रिक किल्न्स, कहीं भी देखिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली स्टेट्स दैट चाइल्ड लेबर इज एन ऑफेंस. इफ एनी पर्सन इज फाउंड इलीगली फोर्सिंग एनी चाइल्ड टू वर्क, he will be sent behind the bars. But who cares? In India, laws are neither respected nor enforced. हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम, हमारे यहाँ के लोगों को ये अच्छे से पता है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम की वीकनेसेस क्या हैं, एंड दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दीज लूप होल्स, दीज ड्रॉबैक्स ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम. लॉज आर नाइदर रेस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया. We can find several children working at tea stalls, dhabas and restaurants. Nobody talks about their future. Nobody cares or thinks about their future.
तो इमेजिन करिए उस सोसाइटी का, उस कंट्री का, उस नेशन का क्या होगा। अनीस जंग हैज वेरी विविडली, पहले लाइन में हमने लिखा है लॉस्ट स्प्रिंग डेलिनिएट्स, डेलिनिएट्स मीन्स डिस्क्राइब्स इन डिटेल, एक्सप्लेन्स। Lost Spring delineates the pathetic and miserable condition of the immigrants of Bangladesh living in Simapuri. Simapuri is a slum area which is situated on the outer part of Delhi, on the outskirts of Delhi, and the bangle makers of Firozabad. In this chapter, you will study the stories of 3 child laborers, 3 children, 3 innocent children who are the victims of exploitation, who are the victims of grinding poverty. Poverty को आप penury भी कह सकते हो. They are struggling with penury, P-E-N-U-R-Y. It is an engrossing and heart wrenching, दिल को दहला देने वाला, मतलब heart moving, very emotional picture. She has very vividly highlighted, it is an engrossing and heart-wrenching description of 3 children, 3 deprived children, 3 emaciated children. Who are these 3 children? Sahib-e-Alam. In the very first part, you will study the story of Sahib-e-Alam. In second part, you will understand about the life of Mukesh and Savita. ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे 3 लिखा है, अक्सर बच्चों को यहाँ पे 2 ही समझ में आता है, साहिब-ए-आलम एंड मुकेश, बट इसका जिक्र मैं करूंगा बेटा, बुक में भी इसका जिक्र होगा, आप ध्यान दीजिएगा। साहिब-ए-आलम, मुकेश एंड सविता। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इस पूरी कंट्री में, क्या इंडिया में, क्या वर्ल्ड में यही 3 बच्चे हैं हु आर द विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, हु आर द विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी? बिल्कुल नहीं। साहिब-ए-आलम, मुकेश एंड सविता, दे टाइपिफाई, सिंबलाइज। ये तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, दे आर मियरली एन एग्जाम्पल। साहिब-ए-आलम, मुकेश एंड सविता, दे टाइपिफाई millions of such children. All those children, they symbolize all those children who are the victims of, इनके जैसे हजारों लाखों बच्चे हैं, who are the victims of poverty, who are the victims of exploitation. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, शायद आप एग्जाम में आप इसको आंसर्स में यूज कर सकें। साहिब-ए-आलम, मुकेश एंड सविता टाइपिफाई hundreds of millions of such children who are emaciated and compelled by grinding poverty to earn their livelihood. They're struggling to earn their livelihood. This extract, this excerpt describes, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, this extract, मैंने पहले कहा this is an extract that you're going to study. This extract describes how the dreams of such, क्या इन बच्चों के सपने नहीं हैं? क्या इनकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं हैं? They also have their own dreams, they also have their own desires, they also have their own aspirations. But what is happening? Their dreams are nipped in the bud. Their dreams are plucked. Their dreams and desires could never bloom. शायद इनके सपने कभी खिल ही नहीं पाए, वो फ्लावर बन ही नहीं पाए, वो जब बड ही थे उनको बडिंग स्टेज में ही प्लक कर दिया गया, तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा होगा? मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, those crafty, cunning, vicious group of people, selfish people, जो अपनी whims को फुलफिल करने के लिए इन बच्चों के सपनों को उजाड़ देते हैं, इनको खिलने ही नहीं देते, बड़ा ही नहीं होने देते। Their dreams are nipped in the bud and they die, they succumb to a pathetic socio-economic and political condition. बट ब्यूटी देखिए इस चैप्टर की, राइटर ने सिर्फ यहां प्रॉब्लम्स ही नहीं हाईलाइट किया, शी हैज हाईलाइटेड हर कंसर्न। इन दिस चैप्टर द राइटर अनीस जंग एक्सप्रेसेस, शोज हर कंसर्न, वो बहुत ही चिंतित है बेटा, वरीड है, कंसर्न्ड है, किसके लिए? ओवर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर। वो प्रॉब्लम्स को तो हाईलाइट करती है, शी इज क्वाइट वरीड, शी इज क्वाइट कंसर्न्ड ओवर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, शी हाईलाइट्स देयर प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम्स के साथ साथ देखिए वो बताती है कि सोसाइटी में
प्रॉब्लम्स हैं, सैडनेस है, डिजेक्शन है, बट कहीं ना कहीं अनीश जंग नैरेट्स स्टोरीज, इसी स्टोरी में प्रॉब्लम भी हाईलाइट किया एंड प्रॉब्लम के साथ साथ शी हैज हाईलाइटेड अनडाइंग ऑप्टिमिज्म, अनडाइंग ऑप्टिमिज्म, रे ऑफ होप. शी मेंशंस, शी एक्सप्रेसेस अ रे ऑफ होप. थोड़ी सी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक भी है, अनडाइंग ऑप्टिमिज्म. फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड इज करेज, साहस. उसको एक आशा की किरण दिखाई दे रही है. फोर्टिट्यूड, करेज, साहस दिखाई दे रहा है. डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही है, रेजिलियंस दिखाई दे रही है कि इन्हीं बच्चों में से, कैसे, इन्हीं बच्चों में से, इन्हीं हंड्रेड्स, थाउजेंड, मिलियंस चिल्ड्रन में से देयर आर सम चिल्ड्रन who are trying to defy all these things, who are trying to follow their dreams despite all odds. They are facing these constraints. They are the victims of poverty, exploitation, but they display determination. They display fortitude. These children display resilience. They are following, they have a dream to follow, to make their future bright. Anish Jung has highlighted this also. So I will cover this chapter in two parts. In the very first part, we will understand, we will unravel the story of Sahib Alam, who is a rag picker boy. In the very first part, we will discuss the story of Sahib Alam. बेटा पूरा चैप्टर ध्यान दीजिएगा, चाइल्डहुड, चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, इन्हीं सब पर चलेगा. आप ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल में ही मेटाफर है, दैट चाइल्डहुड इज द स्प्रिंग ऑफ अ मैन्स लाइफ. बच्चों से, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है, बच्चों से उनका बचपन चुराया जा रहा है. कौन लोग हैं इसके पीछे, मैंने डिस्कस किया. सो लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट पार्ट, स्टोरी ऑफ साहिब आलम. टाइटल ही बिगिन हो रहा है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी और अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज. ये लाइन कब आएगी, कहां आएगी, आप समझेंगे. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज अ स्टोरी ऑफ अ रैग पिकर बॉय, जो सड़कों पर, गलियों में जो कूड़ा उठाते हैं बेटा, रैग पिकर्स, ये उन्हीं में से एक बच्चा है. हमने बताया अनीश जंग, शी वाज अ ट्रैवलर, शी यूज्ड टू ट्रैवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो बच्चों से मिलती थी, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके बड़ी कंसर्न रहती थी. वैसे तो दिल्ली में रहती थी, और एक दिन उसने, आपने जरूर देखा होगा कि अपनी कॉलोनी में आपने जरूर ये देखा, नोटिस किया होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ बच्चे, कुछ लोग अपने शोल्डर पर बोरा लिए हुए, सैक लिए हुए, कूड़ा वगैरह कुछ उठाते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे, बॉटल्स हुए, वो उठाते हुए जरूर आपने देखे होंगे. दे आर कॉल्ड रैग पिकर्स. अनीश जंग ने भी यही चीज नोटिस किया. शी नोटिस्ड एवरी डे, शी नोटिस्ड अ बॉय इन हर लोकेलिटी, ये अपनी लोकेलिटी में जहां वो रह रही है वहां की बात कर रही है. एवरी डे शी यूज्ड टू नोटिस अ लिटिल बॉय, एन इनोसेंट बॉय. एवरी मींस ही यूज्ड टू कैरी अ लार्ज बैग, a sack over his shoulder, a large bag over his shoulder, and he used to search something. Notice करती थी, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, कहां पर, in the heap of garbage. That boy used to scrounge. Scrounge is search. He used to scrounge something in the heap of garbage. ये वो हर दिन नोटिस करती थी. एक दिन उससे रहा नहीं गया, सोचा इस बच्चे से थोड़ा कॉन्वर्सेशन करूं, और वो बात करना शुरू करती है. अनीश जंग उस बच्चे से बात करना, अभी उस बच्चे का नाम, गांव, शहर कुछ नहीं पता है, अब पता चलेगा वो बच्चा है कौन. स्टोरी यहीं से बिगिन हो रही है. अनीश जंग यूज्ड टू नोटिस अ लिटिल बॉय इन हर लोकेलिटी कैरिंग अ लार्ज बैग ओवर हिज शोल्डर. He used to scrounge something in the heap of garbage. Heap of garbage, garbage dump. And one day she asked him, why do you do this? तुम ये काम क्यों करते हो भाई? She asked that boy, why do you do this? The boy was quite bold and frank. बच्चा काफी bold है, frank है.
He told the author that he has nothing else to do. He has no any other work to do. Author advised him to go to school. Why don't you go to school? She advised him to go to school. The boy immediately answered that there are no schools in the locality. इस vicinity में, इस neighborhood में कोई स्कूल ही नहीं है मैम. बट देखिए यहां पर बच्चे की डिजायर, बच्चे की डिटर्मिनेशन, विल पावर देखिए, आप समझ पाएंगे. द बॉय spoke quite frankly. He told the author that there are no schools in this neighborhood, in this locality, but if any school is open, he would love to join. देखिए बच्चे के अंदर पढ़ने की डिजायर है, वो स्कूल जाना चाहता है, बट यहां पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. He told the author that if any school is open, he would love to join. ऑथर तो बेटा सीरियस नहीं थी, वो तो बस मजाक कर रही थी, और बातों बातों में वो यहां पे एक गलती कर बैठी. आगे क्या बोला? ऑथर सेड, इफ आई ओपन ए स्कूल वुड यू कम, वुड यू ज्वाइन? द बॉय स्माइल्ड, ही बिकेम हैप्पी, हिज आईज लिट अप, उसकी आंखों में एक चमक आ गई, एंड ही एग्रीड दैट ही वुड श्योरली ज्वाइन. ऑथर ने कह तो दिया था, बट शी वॉज नॉट सीरियस एट ऑल. शी वॉज जस्ट किडिंग. But the boy had taken this statement seriously. ऑथर की इस बात को उस लड़के ने बहुत ही सीरियसली ले लिया था कि मैडम स्कूल खोलेंगी तो मैं ज्वाइन करूंगा. From that day onwards, whenever he found the author, he used to go to her and ask the same question. वो ऑथर को जहां भी देखता, वो दौड़ करके बिना बुलाए ऑथर के पास जाता और अनीश जंग से एक ही क्वेश्चन पूछता, मैडम इज योर स्कूल रेडी? सोचिए कितनी एम्बैरसमेंट हुई होगी ऑथर को. ही यूज्ड टू आस्क द सेम क्वेश्चन, मैम इज योर स्कूल रेडी? व्हेनेवर ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, द ऑथर वाज हाईली एम्बैरस्ड. शी वाज एम्बैरस्ड बिकॉज she was not serious at all. She was just kidding, she was just joking, but the boy had taken it seriously. यहां पर ऑथर एक लाइन कहती है कि मैंने उससे वादा तो किया था स्कूल खोलने का ना, स्कूल ओपन करने का, बट क्या सिर्फ मैं ही थी इस दुनिया में, इस देश में सिर्फ मैं ही थी जिसने ऐसा वादा किया था? लाइन अगर आप बुक पढ़ोगे बेटा, ये लाइन आएगी, ऑथर की एम्बैरसमेंट को, हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है कि प्रोमिसेस लाइक माइन, ऐसे बहुत सारे वादे, प्रोमिसेस लाइक माइन एग्जिस्ट इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड. ऐसे बहुत सारे वादे इन बच्चों से, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मैंने झूठा वादा किया. ऐसे बहुत सारे वादे इन बच्चों से, झूठे वादे, फेक प्रोमिसेस इन बच्चों से के साथ किए जाते हैं. प्रोमिसेस लाइक माइन. अब यहां लिखोगे, दिस statement clearly, vividly highlights the embarrassment, helplessness of the author, that such kind of promises exist in every corner of this world. Such kind of promises, fake promises are made to these poor children by government. देखिए rich people को देखिए, हम गरीबों के लिए ऐसा कर देंगे, इनके लिए कॉलोनीज बनवाएंगे, स्कूल्स बनवाएंगे, बट दे आर मियरली वर्ड्स. इनको सिर्फ वर्ड्स दिए जाते हैं बेटा. दे आर नेवर ब्रॉट इनटू एक्शन. दोज प्रोमिसेस आर नेवर फुलफिल्ड. ऑथर को बड़ी एम्बैरसमेंट हुई कि ऐसा उसने फेक प्रॉमिस क्यों किया, और उसको बाद में पता भी चला कि दैट बॉय बिलोंग्स टू बांग्लादेश. ही बिलोंग्स टू बांग्लादेश. हिज फैमिली बिलोंग टू, मतलब ही वॉज एन इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश. वो बांग्लादेश से आया हुआ इमिग्रेंट था उसकी फैमिली. ऑथर को पता है ड्यूरिंग 1971 कुछ घटनाएं घटी थी बेटा. ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश वॉज बैडली अफेक्टेड by natural disaster, flood and storm, and at that time large number of Bangladeshis, they migrated from their country and they came to India. उस समय हमारे यहाँ की बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा सील्ड नहीं थी, ठीक है, तो ये लोग चले आए, वहाँ से माइग्रेट कर गए. एंड वेयर एवर दे फाउंड एम्प्टी प्लेसेस दे गॉट सेटल्ड. और उन्हीं में से एक जगह है सीमापुरी. सीमापुरी, एज आई सेड, सीमापुरी द स्लम एरिया.
1971-72 की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा। उस समय तो बहुत सारे स्पेस हमारी कंट्री में खाली थे, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। एंड सीमापुरी द स्लम एरिया विच इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, इनको जहां भी जगह मिली वहीं पर ये सेटल हो गए। ऑथर को ये पता चल गया, वो समझ गई दीज आर द इमिग्रेंट्स एंड they have no any other source of income, source of livelihood, that's why they all are engaged in rag picking। और एक दिन उसने नाम पूछ लिया, नाम क्या है तुम्हारा? One day author asked his name, वो काफी फैमिलियर हो गई, बच्चा भी ऑथर से काफी फैमिलियर हो गया, मतलब they became familiar to each other and one day she asked his name and the boy proudly said, बहुत ही प्राउडली बताता है, बोस्ट करते हुए बताता है कि हिज नेम इज साहिब आलम। ही टोल्ड हिज नेम इन सच अ मैनर, एक्चुअली ही वॉज अनअवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम। द बॉय वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम, बट ऑथर तो समझ गई इसके नाम का मतलब क्या है। ऑथर ये समझ गई कि it is better, it is good that he doesn't know the meaning of his name, otherwise he would never believe, he would have a hard time to believe। अच्छा यही होगा, ये बहुत अच्छा है, इसको अपने नाम का मतलब नहीं पता, otherwise he would have a hard time to believe। ऑथर क्या समझी बेटा? ऑथर understood, she immediately knew that his name means साहिब आलम, his name means Lord of Universe। साहेब, लॉर्ड, ए उर्दू वर्ड है, ए ऑफ आलम, आलम इज यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है साहिब आलम्स नेम इज आयरॉनिकल, एक्सप्लेन करिए कैसे उसका नेम आयरॉनिकल है। तो यहां बताना पड़ेगा साहिब आलम्स नेम इज आयरॉनिकल। आयरनी क्या होता है बेटा? कंट्रास्ट, कि मीनिंग और कह सकते हो नेम, जो कहा जाए और उसकी मीनिंग दोनों कंट्रास्ट करें। साहिब आलम्स नेम इज आयरॉनिकल बिकॉज हिज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ, सिंगल कॉमा में आप लिखेंगे लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट ही वॉज डूइंग द जॉब ऑफ रैग पिकिंग। सोचो, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स काम क्या कर रहे हैं? रैग पिकिंग का। कितना कंट्रास्टिंग नेम है, आप देखिए। Author thought that it is better that he doesn't know the meaning of his name, otherwise he would never believe। अगर मैं बता भी दूंगी कि तुम्हारे नाम का मतलब ये है तो अरे मैम क्या बात कर रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप, तो उसको कभी यकीन ही नहीं होता। तो अच्छा यही है, उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता, वो इल्यूजन में जी रहा है, अच्छा यही है, अदरवाइज ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीव। इन दिस वे days passed, weeks passed, every day author used to notice large number of rag picker children in her locality। Every day they used to appear like morning birds and disappeared in the afternoon। सुबह सुबह आ जाते और अपना काम करके कूड़े में कुछ सर्च करते, हीप ऑफ गार्बेज में, गार्बेज डंप्स में कुछ ढूंढते, स्क्राउंज करते और फिर आफ्टरनून तक गायब हो जाते। सिमिलरली देखिए यूज किया गया कि दे यूज टू अपीयर, हर दिन वो नोटिस करती थी, दे यूज टू अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर्ड इन द आफ्टरनून। One day she asked her, देखती थी बेटा कि they were poor children, they had no shoes, no slippers in their feet, पैरों में चप्पल नहीं है, शूज नहीं है, नंगे पैर, बेयर फुट चिल्ड्रन हैं ये लोग। एक दिन उनमें से एक से उसने क्वेश्चन कर लिया, पूरी आर्मी थी बेटा, आर्मी ऑफ रैग पिकर चिल्ड्रन, और उसी में से साहिब आलम वाज वन ऑफ देम। अकेला थोड़ी था बेटा, सीमापुरी तो पूरी लोकेलिटी है रैग पिकर्स की, सीमापुरी इज अ लोकेलिटी ऑफ रैग पिकर्स, पूरी आर्मी है इनकी, ग्रुप है पूरा। एंड वन डे ऑथर आस्क्ड वन बॉय, देखती है इसके पैरों में स्लीपर नहीं है, शूज नहीं है, शी आस्क्ड वन बॉय व्हाई डोंट यू वेयर। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनिएगा। वन डे द ऑथर आस्क्ड अ बॉय फ्रॉम द आर्मी ऑफ रैग पिकर्स, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ रैग पिकर्स, दैट व्हाई ही वॉज नॉट वेयरिंग स्लीपर्स। तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो, तुम्हारे पास शूज या स्लीपर्स नहीं है। बच्चे ने क्या आंसर दिया देखिए बेटा, कितना इनोसेंट आंसर था। द बॉय आंसर्ड, व्हेन शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द बॉय आंसर्ड दैट हिज मदर हैज नॉट गिवन हिम।
शी हैज केप्ट हिज स्लीपर्स इन टू द शेल्फ, एल्मिरा, कबर्ड। बच्चों को सच बताया ही नहीं गया, उनको तो पता ही नहीं है। दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी होती क्या है उनको ये नहीं पता। उनको तो जो कह दिया गया वही मान लिया, मां ने पिताजी ने जो समझाया वही मान लिया। जब ऑथर ने क्वेश्चन किया कि व्हाई ही वाज नॉट वेयरिंग स्लीपर्स, ही गेव एन इनोसेंट रिप्लाई कि हिज मैम, मेरी मम्मी ने नहीं दिया है, मेरी मम्मी ने मेरे पास नए नए स्लीपर्स हैं, बट उसको शेल्फ में, कबर्ड में, अलमायरा में रख दिया है, जरूरत पड़ेगी तो पहनूंगा मैं। सच्चाई तो है कि बेटा है ही नहीं उसके पास, उससे झूठ बोला गया है। He told that his mother has kept his slippers into the shelf. दूसरा बच्चा सपोर्ट करता है, another boy supported that he has no habit of wearing the slippers, कि मैडम मैं तो पहनता ही नहीं। He throws them, फेंक देता हूं, मुझे तो आदत ही नहीं है। आदत क्या है ही नहीं तो पहनोगे क्या। Another boy supported, कौन सा बच्चा सपोर्ट कर रहा है, देखो वो सपोर्ट कर रहा है मैम, उसी बच्चे का सपोर्ट कर रहा है कि he has no, ये पहनता ही नहीं है, फेंक देता है ये। He has no habit of wearing the slippers or shoes, he throws them। और कौन सा बच्चा सपोर्ट कर रहा है, who himself was wearing a mismatched shoes, different shoes, एक पैर में दूसरा जूता, एक पैर में किसी के दूसरे के discarded shoes रहे होंगे, वो पहने हुआ है। When author commented on that, कि तुम तो ना ही बोलो, पहले खुद को देखो, तुम क्यों उसका सपोर्ट कर रहे हो, मैं उससे पूछ रही हूं, उससे बात करने दो। तो when the author commented on him, he started hiding, he started shuffling his feet, वो अपने पैर को छिपाने लगा। खुद तो वो mismatched shoes पहने हैं, discarded shoes पहने हैं, वो सपोर्ट कर रहा है कि he has no habit of wearing, he throws them। तो बच्चों ने, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा कि what explanation do the children give for not wearing slippers। तो आंसर आप यहीं से बिगिन करोगे कि one day when author asked a barefoot boy that why he was not wearing slippers, that boy gave an innocent reply that his mother has not given his slippers, she has kept them in the shelf। Another boy supported that he has no habit of wearing, he throws them। ये बच्चे, मतलब she got a very innocent explanation। तो ऑथर ने सोचा कि जरा पता करती हूं कि ये जो गवर्नमेंट है, सोसाइटी के बड़े अमीर लोग हैं, ये बड़े बड़े वादे करते हैं, जरा इनसे पूछती हूं भैया आप गरीबों के लिए क्या करते हैं, आपने गरीबों के लिए क्या किया। अब इस पे देखिए क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड द ऑथर गेट फ्रॉम द पीपल फॉर नॉट वेयरिंग स्लीपर्स। जब उसने लोगों से पूछने की कोशिश की, सच जानने की कोशिश की, तो उसको क्या एक्सप्लेनेशन मिला। तो यहां बताना पड़ेगा कि आफ्टर गेटिंग silly and innocent explanations from children for not wearing slippers, author tried to know the reality from the authorities, from the people, कि चलती हूँ जरा authorities से बात करती हूँ। When she tried to know the veracity, when she tried to know the fact, she was completely shocked। She was told, क्या बताया गया author को, कि they remain shoeless, they remain barefoot, इट इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मनी। क्या मैडम आप भी परेशान हो रही हैं, आप इनके चक्कर में क्यों पड़ रही हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, आप नहीं जानती, ये नंगे पैर दिखते हैं, बिना कपड़ों के दिखते हैं, बट इनके पास बहुत पैसे। ऑथर वाज शॉक्ड व्हेन शी गॉट दिस रबिश एक्सप्लेनेशन। शी वाज टोल्ड, क्या बताया गया ऑथर को, कि इट इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन। एक ट्रेडिशन बन गई है ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है। इट इज नॉट, ये किसने कहा, अथॉरिटीज ने, पीपल ने, रिच पीपल ने, कि इट इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट। थर्ड क्वेश्चन इसी बनता है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड द ऑथर गिव। बच्चों ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्लियर हो गया। अथॉरिटीज ने क्या बोला, ये क्लियर हो गया। अब इस पे थर्ड क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड द ऑथर गिव फॉर नॉट मींस फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग स्लीपर्स। तो यहां आंसर आप बिगिन करोगे कि आफ्टर
listening various innocent explanation from the children and silly rubbish explanation from the authorities, the author was completely shocked and she says, उसका remark देखिए, she says that all these explanations are fake, all these explanations have no root, no base, they are only an excuse to hide the perpetual state of poverty. Perpetual means बेटा unending, एक ऐसी गरीबी जो कभी खत्म ही ना हो। आज देखिए, rich people are getting richer day by day, poor people are getting poorer day by day. So author says that all these explanations are rubbish, they are fake, they are an excuse to hide the perpetual state of poverty, unending condition of poverty. ये सब गरीबी को छिपाने का, बच्चे अपनी गरीबी छिपा रहे हैं, अथॉरिटीज इनकी गरीबी छिपा रही हैं, मीडिया गवर्नमेंट इनकी गरीबी को छिपा रहा है, कोई आगे नहीं आना चाहता। ये सब फेक एक्सप्लेनेशन है, ऑथर क्लियरली कह देती है। यहां पर बेटा ऑथर एक स्टोरी सुनाती है। शी मेंशंस एन स्टोरी। उस स्टोरी को मेंशन करने का रीजन क्या है देखिए। शी मेंशंस अ स्टोरी, क्या उसका रीजन है देखिए। Author mentions this story to highlight the importance of education. Author knows it very well. She believes that education is the only weapon which can bring a change in the world. Education can enlighten the minds. Education can kindle our hearts. इस स्टोरी के पीछे का मकसद यही है, author wants to highlight the value of education, importance of education. वो कहानी बहुत पहले की है बेटा, वो कहानी उसको भी किसी ने सुनाई थी। मतलब जो स्टोरी ऑथर यहां मेंशन कर रही है, दैट स्टोरी वॉज टोल्ड टू हर बाय अ मैन फ्रॉम उडुपी। उडुपी कर्नाटका, आप देखिए बेटा कर्नाटका में है, वो कर्नाटका ही है कह लीजिए। कर्नाटका का एक उडुपी का एक आदमी था, उसने अपनी एक स्टोरी ऑथर को बताई थी 30 साल 30 ईयर्स एगो। ऑथर को वही स्टोरी याद आ जाती है। फिर समझ लीजिए, दैट स्टोरी वॉज टोल्ड टू द ऑथर बाय अ मैन फ्रॉम उडुपी। उस आदमी ने क्या कहानी बताई थी ऑथर को? उस आदमी ने अपने बचपन की कहानी बताई थी। ऑथर को कहानी ऐसे अनायास याद आ जाती है, लेकिन सोचती है मेंशन कर दूं। That man from Udupi had told that story to her that when he was a young boy, कि जब वो एक छोटा सा बच्चा था, little kid था, he used to go to school and his school was, he belonged to a poor family, his school was quite close to a temple and his father was priest in that temple. उसके फादर उसी टेम्पल में प्रीस्ट थे। वो आदमी अपनी कहानी बता रहा है कि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, डेली स्कूल जाता था। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, उस आदमी ने कहा ही वेंट टू स्कूल डेली and his school was quite close to a temple. His father was a priest in that temple. Before going to school, क्या करता था बच्चा? देखिए बेटा, वो आज बड़ा हो गया है, आज आदमी बन गया, बट उसको अपना बचपन याद है कि every day before going to school, he used to stop in front of temple and he used to pray to God for a pair of shoes. हर दिन वो गॉड से एक प्रेयर करता था कि गॉड मेरे लिए भी एक शूज या स्लीपर, एक पेयर ऑफ शूज दे दीजिए, मेरे पास नहीं है पहनने के लिए। प्योर हार्ट से वो प्रेयर करता था गॉड से, हर दिन प्रेयर करता था। कौन? वही आदमी जो पहले एक लिटिल किड था। एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्कूल ही यूज्ड टू स्टॉप इन फ्रंट ऑफ टेम्पल गेट एंड प्रे टू गॉड फॉर अ पेयर ऑफ शूज। ये कहानी उसने ऑथर को बताई थी। कब? 30 ईयर्स एगो। 30 साल पहले एक बच्चा था, आज वो 30 साल यानी आज वो लगभग 35-40 साल का रहा ही होगा। ऑथर डिसाइडेड टू विजिट हिज विलेज कि यार ऐसा करती हूं, जरा इसके गांव चलती हूं, देखती हूं। क्यों उसने ऐसा डिसीजन लिया? उसने एक बात पकड़ी थी कि बच्चा गरीब तो था बट ही वेंट टू स्कूल डेली। वो डेली स्कूल चलती हूं, जरा देखती हूं एजुकेशन ने क्या चेंज लाया है। 30 years later, author decided to visit his village and she went there. She visited his village और वहां देखती क्या है? She found that the village was completely changed. There was new priest in the temple. टेम्पल में एक नया प्रीस्ट था। गांव में एक अलग ही हवा बह रही थी। मतलब
there was change of air in the village. There were new plastic chairs, नई प्लास्टिक चेयर्स, न्यू प्रीस्ट, कुछ अलग ही था गांव में. सडनली अ लिटिल बॉय केम, एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आता है. अब यहां हुआ क्या होगा, प्रोबेबली आप देखिए कि वही बच्चा शायद आज उसी टेंपल का प्रीस्ट बन गया. वही बच्चा जो बड़ा हुआ टेंपल का प्रीस्ट बना, और वो अपने बच्चे को देखिए कैसे पढ़ा रहा है. एजुकेशन वो भी पढ़ा लिखा, पढ़ लिख करके वो प्रीस्ट बन गया टेंपल में, लेकिन अपने बच्चे को देखिए कैसे एजुकेशन दे रहा. जो खुद नहीं उसको मिल सका वो अपने बच्चे को दे पा रहा है. कैसे, देखिए. ऑथर नोटिस्ड अनदर बॉय, लिटिल बॉय, ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल. He was carrying a school bag, he was wearing nice uniform, shoes, socks वो पहने हुआ है. That boy returned from school, वो एक बच्चा आता है, he threw his school bag on the folding bed, अपने बैग को बेड पर फेंकता है, शूज को फेंकता है और अंदर चला जाता है. Seeing this, author immediately remembered the prayer which was made by a boy 30 years ago. कि देखो ये 30 years ago there was a boy who used to pray to God for a pair of shoes. उसके पास था नहीं. आज जिसके पास है, he has no value. लेकिन आज उसके पास है क्यों? Just because of education. लेकिन वो वैल्यू नहीं कर रहा है उसकी. कुल मिलाकर के ये है, ऑथर हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस कि अगर एजुकेशन है तो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है. सीमापुरी और इसी क्यूरियोसिटी में ऑथर तो ट्रैवल कर रही है, जहां जहां उसको पता चलता वो ट्रैवल कर जाती है. वन डे शी डिसाइडेड टू विजिट सीमापुरी. वो देखती थी ना कि उसकी लोकेलिटी में ये बच्चे कौन है, ये कहां से आते हैं. उसके माइंड में क्वेश्चन चल रहा था ना, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं. एवरी डे दे अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर इन द आफ्टरनून. वन डे शी डिसाइडेड टू विजिट देयर लोकेलिटी, कि चलती हूं जरा पता करती हूं कहां से आते हैं, कौन है ये लोग. So, with this curiosity, she visited सीमापुरी. सीमापुरी is a place, ये लाइन बुक में आएगी बेटा, ध्यान दीजिएगा. सीमापुरी is a place on the periphery of Delhi. Periphery is outskirts of Delhi, outer part of Delhi, but miles away from it. सीमापुरी दिल्ली में होकर भी, देखिए कितना कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. सीमापुरी दिल्ली में होकर भी दिल्ली से बहुत दूर है, दिल्ली का पार्ट होकर भी दिल्ली से बहुत दूर है. अब आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि सीमापुरी इज अ स्लम एरिया विच इज अ लोकेलिटी ऑफ रैग पिकर्स. इट इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली देखिएगा बेटा, दिल्ली, दिल्ली सीमा, इसी को पकड़िए आप. दिल्ली का पार्ट होकर भी दिल्ली से बहुत दूर, दिल्ली में होकर भी दिल्ली से बहुत दूर. व्हाट डज दिस मीन? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, है कि नहीं? दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, द कैपिटल ऑफ इंडिया. द पीपल ऑफ दिल्ली लिव अ लग्जूरियस लाइफ. द पीपल ऑफ दिल्ली enjoy the life of glitter, glamour, luxury. They have all facilities. But on the other hand, on contrary, the people who are living in Simapuri, they are rag pickers. They are poor people. They are deprived of even basic amenities, basic facilities. तो सीमापुरी दिल्ली में होकर भी दिल्ली से दूर है, मतलब उस डेवलपमेंट से. सीमापुरी इज फार अवे फ्रॉम दैट डेवलपमेंट, फ्रॉम दैट प्रोग्रेस, फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्लिटर, ग्लैमर एंड लग्जरी. उस ग्लिटरिंग लाइफ से, ग्लैमरस लाइफ से, उससे बहुत दूर है. जो डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, फैसिलिटीज दिल्ली में लोगों को मिल रही है बेटा, सीमापुरी के लोगों को तो बेसिक एमिनिटीज भी नहीं मिल रही हैं. ये उससे बहुत दूर है. आई होप यू आर गेटिंग मी. और वहां के लोग कौन है बेटा? दे आर स्क्वाटर्स. बुक में ये वर्ड यूज किया गया बेटा. द पीपल हु आर लिविंग इन सीमापुरी, दे आर मेनली रैग पिकर्स, लेकिन उनको स्क्वाटर्स कहा गया. स्क्वाटर का मतलब यहां पे ये है बेटा, इलीगल ऑक्यूपेंट्स, इलीगल ड्वेलर्स. क्योंकि ये दे आर द इमिग्रेंट्स ऑफ बांग्लादेश. दे हैव नो आइडेंटिटी. यहां आकर के पालथी मार के बैठ गए हैं, इनके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है.
they have no identity, no passport, no any proof, कोई इनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं इनके पास. They are squatters, illegal dwellers. They are living in Simapuri in India illegally. But यहां पे देखिए बेटा, मोर देन, उस समय की बात थी 1971 की, ऑथर ने लिखा है मोर देन 10,000 रैग पिकर्स आर लिविंग. आज तो बढ़ गए होंगे, पॉपुलेशन बहुत हो गई है. ऑथर कहती है बेटा, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. ये एक्सप्लेनेशन आ सकता है, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. अब यहां पहले आप बताइए सीमापुरी का क्या है, कौन लोग. सीमापुरी is a slum area which is situated on the outskirts of Delhi, but it is कह सकते हो far away from the development progress, glitter, glamour which is seen in Delhi. The people who are living in Simapuri, they are squatters, they are rag pickers, they are illegal कह सकते हो immigrants of Bangladesh. They have no identity, no permission, no passport. They have no source of income, no source of livelihood, only rag picking. Rag picking is the only source of income. Rag picking is the only source of livelihood through which they earn something to fill into their bellies. Survival in Simapuri. अगर सीमापुरी में जिंदा रहना है तो रैग पिकिंग करना है. एक क्वेश्चन और भी आता है इसी पर बेटा. These poor people, they have no identity, no permission, but they have only ration cards. इनके पास राशन कार्ड्स हैं. With the help of ration cards, ration card helps them to buy food grain. They are happy and satisfied in Simapuri. They don't want to go back to their country, their village, because they think that at least here in Simapuri, they at the end of the day they are able to get something to fill into their bellies, to fill into their stomachs. Food is more important than identity. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. They give priority to food, not to the identity. Food is more important than identity in Simapuri. ये भी आया, तब भी आपको वहीं से आंसर लिखना है कि सीमापुरी is a slum area which is situated on the outskirts of Delhi. More than 10,000 rag pickers live in Simapuri. They have no source of income, no source of livelihood. Rag picking is the only source of livelihood for them. Each and every member is engaged in rag picking. Family का हर member rag picker है. They have no, हमने क्या कहा, food is more important. अब आप बताइए कि they are squatters, they are illegal dwellers, but they don't bother for identity. They have no identity, no permission, no passport, no license, but they are happy and satisfied in Simapuri because at the end of the day they are able to get something, some food to fill into their empty stomachs. इसलिए वो खुश हैं. और ऑथर जब बात करती है लोगों से, औरतों से कि आप लोग वहां बांग्लादेश जाना चाहते हैं, तो दे डिनाई, दे रिफ्यूज कि हम लोग यहीं पर अच्छे हैं. वी डोंट वांट टू गो बैक. हमारे लिए फूड ज्यादा जरूरी है आइडेंटिटी से कहीं ज्यादा. आइडेंटिटी नहीं चाहिए हमको, खाना चाहिए. हंग कहते हैं ना कि भूख बहुत बड़ी चीज होती है, और भोजन के लिए आदमी कुछ भी करता है, पेट के लिए आदमी कुछ भी करता है. ये पेट के लिए ही जो कर रहे हैं. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा यहां पर, गार्बेज. ये क्वेश्चन याद रखिएगा. सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैग पिकिंग. पहले सीमापुरी के बारे में बताइए, वहां कौन लोग रह रहे हैं, फिर आप बताइए. दूसरा क्वेश्चन, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्वाइवल, देन आइडेंटिटी इन सीमापुरी. ये भी आप बताइए, वही आंसर, वही उसी तरीके से. गार्बेज होल्ड्स अ डिफरेंट मीनिंग फॉर एल्डर्स एंड फॉर यंगर्स. ये भी क्वेश्चन आता है. गार्बेज, जो हीप ऑफ गार्बेज है, जो कूड़े का ढेर है, वो बड़ों के लिए अलग मीनिंग रखता है, बच्चों के लिए अलग मीनिंग रखता है. गार्बेज होल्ड्स अ डिफरेंट मीनिंग फॉर एल्डर्स एंड फॉर यंगर्स. कैसे, अब आप बताइएगा कि गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर एल्डर्स एंड फॉर यंगर्स. बड़ों के लिए क्या है? फॉर एल्डर्स इट इज देयर डेली ब्रेड, क्योंकि वही तो उनकी लाइवलीहुड है. अगर वही हीप ऑफ गार्बेज ना हो, उसी को स्क्राउंज करते हैं, तो उनको प्लास्टिक की बोतल,
ठीक है, कह सकते हो बॉक्सेस जो मिलते हैं उसको वो सेल करते हैं। फॉर एल्डर्स इट इज देयर डेली ब्रेड, इट इज देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इट इज द रूफ ओवर देयर हेड। सिर के ऊपर की छत ही वही है, जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं उसी से जी रहे हैं। फॉर एल्डर्स गार्बेज इज देयर डेली ब्रेड, रूफ ओवर देयर हेड, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। बट बच्चों के लिए तो कहीं ज्यादा है। गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए क्या है? फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। वो एक सरप्राइज है। जैसे गिफ्ट होता है ना, आप जब पैक्ड गिफ्ट मिलता है तो उसको खोलने की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। सो गार्बेज इज रैप, बच्चों के लिए क्या है? फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। वो किसी सरप्राइज से कम नहीं है। कैसे? समटाइम्स व्हाइल स्क्राउंजिंग द हीप ऑफ गार्बेज, ये बच्चे जो होते हैं कभी कभी जब कूड़े के ढेर में स्क्राउंज सर्च कर रहे होते हैं, समटाइम्स व्हाइल स्क्राउंजिंग द हीप ऑफ गार्बेज दे गेट 1 और 2 रुपी क्वाइंस, 1 या 2 रुपए के सिक्के मिल गए। समटाइम्स 10 रुपी नोट, इनको उसी कूड़े के ढेर में 5 रुपी 10 रुपी की नोट मिल जाती है। चैप्टर देखिए स्टार्टिंग यहीं से हुआ है, समटाइम्स आई फाइंड अ 10 रुपी। आप देखिए ये वहीं की लाइन है। इन बच्चों के लिए गार्बेज होल्ड्स अ डिफरेंट मीनिंग। क्या? इट इज रैप्ड इन वंडर। कैसे? वो सरप्राइज है, कब क्या निकल के आएगा, एक क्यूरियोसिटी है। समटाइम्स दे गेट 1 और 2 रुपी क्वाइंस, समटाइम्स 10 रुपी नोट। फिर क्या होता है? दे डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, दे कंटिन्यू टू स्क्राउंज बिकॉज देयर इज होप टू गेट मोर, कि और कुछ निकल के आएगा, अभी और मिलेगा। ये बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर है। ऐसे डेज बीतते गए बेटा। ऑथर नोटिस करती गई, वन डे अपनी लोकेलिटी में फिर वापस आ गई जहां रहती है वो। वन डे शी फाउंड साहिब आलम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ नेबरहुड क्लब। जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती है बेटा, उसमें देखो अपने अपने क्लब्स होते हैं, वहां पर पार्क्स होते हैं, लोग वहां जिम्स होते हैं। सो ऑथर ने क्या देखा? साहिब आलम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ नेबरहुड क्लब। ही वॉज वॉचिंग 2 यंग मैन प्लेइंग टेनिस। क्लब के अंदर 2 यंग मैन थे, दे वर प्लेइंग टेनिस। साहिब आलम वॉज वॉचिंग देयर गेम। ऑथर काफी देर तक देखती रही, फिर जाती है पास में, पूछती है। ऑथर आस्क्ड साहिब आलम इफ ही ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले टेनिस, तुम भी खेलना चाहते हो? शी आस्क्ड, शी इंक्वायर्ड इफ ही ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले टेनिस। ही रिफ्यूज्ड। He told the author that he was not interested in playing, he was happy only in watching that game. देखिए वो उसको पता है बेटा कि the game that he is watching, it is out of his reach, it is beyond his access. उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो गेम उसकी पहुंच से बाहर है। When author asked him if he also wanted to play tennis, he refused. He told her that he was happy only in watching that game. He doesn't want to play. आगे ऐड करता, he added कि whenever there is nobody, he goes inside. The gatekeeper allows him. There is a swing. अंदर एक झूला है मैम, गेटकीपर अंकल मुझे अलाउ कर देते हैं। बताता है he goes inside the club. There is a swing and he enjoys the swing. मैं झूला झूल लेता हूं बस। बट यहां पर वो मना करता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग टेनिस। ऑथर एक चीज और नोटिस करती है बेटा, साहिब आलम वॉज ऑल्सो वेयरिंग अ टेनिस शूज। वो स्पोर्ट्स शूज, टेनिस शूज पहने हुआ था, वो भी एक, उसके पैरों में जूते थे, बट वो जूते उसके नहीं थे। ध्यान दीजिएगा। ही वॉज एट दैट टाइम, ऑथर नोटिस दैट साहिब आलम वॉज वेयरिंग टेनिस शूज बट दे डिड नॉट बिलोंग टू हिम, दे वर नॉट हिज शूज, दे वर डिस्कार्डेड शूज। बेटा जब आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, पैंट शर्ट, तो आप डिस्कार्ड कर देते हो, गरीबों में किसी को आप भिखारियों को दे देते हो, डिस्कार्ड करते हो। तो जो जूते पहने हुआ है, दे वर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। शायद किसी रिच बॉय ने डिस्कार्ड किया था। क्यों? बिकॉज ऑफ अ होल, देयर वाज अ होल इन वन ऑफ देम। एक छोटा सा होल था, दैट्स व्हाई सम रिच बॉय हैड डिस्कार्डेड एंड साहिब आलम वाज वेयरिंग। बट उसके लिए तो अ बॉय, आप सोचिए बेटा, अ बॉय who remained barefoot throughout his life, who remained shoeless throughout his life, for him
शूज विद अ होल इज जस्ट लाइक अ ड्रीम विच हैड कम ट्रू। उसके लिए तो एक सपना सच जैसे हो गया हो ना, उसने तो कभी जूते देखे नहीं थे, पहने नहीं थे, उसके लिए तो दिस शूज विद अ होल इज जस्ट लाइक अ ड्रीम दैट हैड कम ट्रू। ऑथर समझ जाती है कि द बॉय कैन नॉट अफोर्ड, उसको पता है कि ही कैन नॉट अफोर्ड दिस गेम। ऐसे डेज बीते बेटा, मंथ्स बीते। एक दिन ऑथर बड़ी सरप्राइज्ड रह गई, विंटर का टाइम। वन डे ऑथर वॉज अमेज्ड, शी वॉज सरप्राइज टू सी साहिब आलम रिटर्निंग फ्रॉम अ मिल्क बूथ। वो मिल्क शॉप से आ रहा था। सरप्राइज होने का सबसे बड़ा रीजन ये था बेटा, दैट डे साहिब आलम, आज तक जितने भी दिन उसने देखे साहिब आलम को, एवरी डे ही यूज्ड टू कैरी अ लार्ज बैग ओवर हिज शोल्डर। हमेशा उसकी पीठ पर एक बड़ा सा बैग रहता था रैग पिकिंग के लिए। बट दैट डे देयर वॉज नो प्लास्टिक बैग ओवर हिज शोल्डर, ही वॉज कैरिंग मिल्क कंटेनर, मिल्क कैनिस्टर। ये सरप्राइज रह गई, ये आज हो क्या गया। ऑथर वॉज सरप्राइज टू सी साहिब आलम कैरिंग, रिटर्निंग फ्रॉम अ मिल्क बूथ, he was carrying milk container, milk canister in his hand. There was no plastic bag over his shoulder. पूछना तो बनता था। Being asked, जब उसने पूछा, being asked, साहिब आलम told her that he has got a job on a tea stall. साहिब आलम told the author that he has got a job on a tea stall and he is paid, उसको जो remuneration मिलता है, he is paid 800 rupees per month and all meal. दिन का खाना मिल जाता है मैम, और मंथ के लास्ट में 800 rupees मिल जाते हैं। साहिब आलम told the author that he has got a job on a tea stall where he is paid 800 rupees per month and all his meals. Author was a keen observer of human emotions. Anish Jung was a keen observer of facial expressions, human expressions. उसने ऑब्जर्व क्या किया, ये बच्चा मुस्कुरा तो रहा है बट ये मुस्कुराहट जेन्युइन नहीं है। इट्स अ प्लास्टिक स्माइल विच ही इज कैरिंग ऑन हिज फेस। ही इज कैरिंग अ प्लास्टिक स्माइल। ऑथर ये समझ गई, मतलब पहचान गई, देयर वर लाइन्स ऑफ कॉन्स्टरनेशन क्लियरली रिटन ऑन हिज फोरहेड। ऑथर ने पढ़ लिया बेटा, शी रेड द लाइन्स ऑफ कॉन्स्टरनेशन, चिंता की रेखाएं। साहिब आलम लुक्ड वरीड, उसने महसूस कर लिया। द ऑथर रेड द लाइन्स ऑफ कॉन्स्टरनेशन क्लियरली रिटन ऑन हिज फेस। बेटा कॉन्स्टरनेशन यहां मैं लिख दे रहा हूं, कॉन्स्टरनेशन, चिंता की जो रेखाएं, लाइन्स ऑफ कॉन्स्टरनेशन क्लियरली रिटन ऑन हिज फेस। कि दिख तो खुश रहा दिखाई दे रहा है बट ये है नहीं। ऑथर पूछती है, क्वेश्चन भी करती है, इफ ही इज हैप्पी। ऑथर आस्क्ड द क्वेश्चन, इफ ही वाज हैप्पी। साहिब आलम कीप्स मम, he had no answer, he remained speechless. When the author asked him if he was happy, he remained speechless, he had no answer. But author got her answer. In his speechlessness, Sahib Alam keeps mum, but in his speechlessness, in his silence, there was the answer. Author को क्या आंसर मिला? That Sahib Alam is no longer his own master. आज ये अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया है। Author understood that Sahib Alam is no longer his own master. Question आता है बेटा, how can you say that Sahib Alam is no longer his own master? यहां बताना पड़ेगा, the day Sahib Alam started working on a tea stall, he was no longer his own master. Because author को समझ में आ गया कि when he was a rag picker boy, the plastic bag was his. The plastic bag belonged to him. But the milk container, milk canister does not belong to him. It belongs to the owner of tea stall. यहां पे एक लाइन कहती है कि the milk container seems to be heavier than the plastic bag. The milk container seems to be heavier than the plastic bag which he used to carry on his shoulder. मतलब जो मिल्क का कंटेनर है ये उस प्लास्टिक बैग से कहीं ज्यादा भारी है। मतलब द जॉब
the responsibility which he has taken up now is heavier than the previous one, is heavier than rag picking. The job and responsibility which he has taken up now, it is heavier, much and more heavier than the responsibility of a rag picker boy. When he was a rag picker boy, he was independent, he was physically, mentally, emotionally free. He was the master of his own desires, master of his own mind. But now he will be controlled by the owner of tea stall. He will be insulted, humiliated, exploited by the owner of tea stall. Now his mind, his body is in the control of his actions, his intentions are in the control of the owner of tea stall. आज साहिब आलम ने अपनी फ्रीडम खो दी. He is no longer his own master. Now he will be controlled by the owner of tea stall. Author concludes this. Now साहिब आलम has lost his freedom. He is no longer his own master. और उसकी चुप्पी ने, उसकी साइलेंस ने ही ये सब कह दिया. So, my dear friends, I hope you have understood the very first part, the story of Sahib Alam, in a better way. I hope my explanations are crystal clear to each and every one of you, and you will keep all these important questions in your mind. Very soon, I will be back with its second part, the story of Mukesh and Savita. Till then, goodbye. Thank you so much. And if you really like my videos, please share and subscribe. Thank you so much.